Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It is lecture number 6 of the chapter 16 in chemistry 10. Today we'll see the short questions given in the exercise of the textbook. The first short question is, what role is played by pine oil in the frost flotation process? फ्रोज फ्लोटेशन के प्रोसेस में पाइन ऑयल का क्या रोल है? Pine oil helps to remove impurities from the ore of the metal. In froth flotation process, the ore particles are preferentially wetted by oil and the gangue particles by water. Oil-coated ore particles, being lighter, come to the surface in the form of froth that can be skimmed. यानी पाइन ऑयल और वाटर को मिक्स करके जब इसमें हम ओर डालते हैं, मेटल का ओर, तो पाइन ऑयल के अंदर ओर के पार्टिकल्स आ जाते हैं और वहां से वो स्किम कर लिए जाते हैं। इस तरह इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में पाइन ऑयल हेल्प करता है। दूसरे नंबर पर है, नेम द वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के नाम ये हैं: concentration of the ore, extraction of the metal, refining of the metal. How is roasting carried out? Roasting कैसे करवाते हैं? It is a process of heating the concentrated ore to a high temperature in the excess of air. For example, copper pyrite is strongly heated in excess of air to convert it into a mixture of cuprous sulfide and ferrous sulfide, while impurities react with oxygen to form volatile oxides. ये देखें, ये कॉपर पायराइट है, ये ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है, explain process of electro-refining. Refining of a metal with the help of electrolysis is called electro-refining. Refining the impure metal by electrolysis is the most widely used process of refining metals. अच्छा, इसमें हमने कॉपर की एक एग्जांपल पहले भी पढ़ी है। फॉर एग्जांपल, electrolytic refining of copper is carried out in an electrolytic tank having copper sulfate solution in it. इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, one impure copper metal, it acts as anode, and other pure copper metal, it acts as cathode. On passing the electric current through the solution, anode dissolves to provide copper ions to the solution. These copper ions are discharged by gaining of electrons from the cathode. Thereby copper atoms deposit on the cathode. तो इस तरह impurities रिमूव हो जाती हैं और प्योर कॉपर कैथोड के ऊपर जमा हो जाता है। ये है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। उसके बाद है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस? इट इज अ चीप प्रोसेस, एक सस्ता का अमल है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिकवर्ड एंड रीयूज्ड। तो इसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज हुए थे वो रिकवर कराए जा सकते हैं, बाद में दोबारा यूज किए जा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज पोल्यूशन फ्री, इसमें पोल्यूशन नहीं होती। सोडियम कार्बोनेट ऑफ वेरी हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन्ड। अच्छी प्योरिटी के साथ सोडियम कार्बोनेट हम हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज वेरी लेस सिंस नो सोल्यूशन इज टू बी इवेपोरेटेड। इसमें सोल्यूशन वगैरह क्योंकि इवेपोरेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए फ्यूल का यूज भी बहुत थोड़ा है। उसके बाद है जी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस? Principle of Solvay's process lies in the low solubility of sodium bicarbonate at low temperature, i.e. at 15 degrees centigrade. When carbon dioxide is passed through an ammoniacal solution of sodium chloride, ammoniacal brine, only sodium bicarbonate precipitates. तो ये Solvay का प्रिंसिपल है। Principle of Solvay's process lies in the low solubility of sodium bicarbonate. सवाल नंबर 7, what happens when ammoniacal brine is
कार्बोनेटेड। व्हेन अमोनिकल ब्राइन इज कार्बोनेटेड, तो होता यह है कि इस प्रोसेस से हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अमोनिकल ब्राइन इज फेड इनटू कार्बोनेटिंग टावर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू इट। तो उसके नतीजे में ये देखें, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो बाद में ब्राइन के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। अच्छा जी, हाउ सोडियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ इज अमोनिया रिकवर्ड इन द साल्वेज प्रोसेस। अमोनिया इज रिकवर्ड in the ammonia recovery tower from ammonium chloride solution produced in the carbonated tower and calcium hydroxide formed in the lime kiln। तो ये अमोनियम क्लोराइड है, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है अमोनिया रिकवरी टावर में, तो अमोनिया वापस आ जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज अमोनिया prepared for the synthesis of यूरिया। यूरिया बनाने में जो अमोनिया इस्तेमाल होता है वो कहाँ से आता है, वो हैबर्स प्रोसेस से आता है। इसमें 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो अमोनिया बनता है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब डेड प्लांट्स ज़मीन के अंदर जाते हैं तो ज़मीन के अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर उनके ऊपर एक्ट करता है, तो मिलियन साल के बाद, कई मिलियन साल के बाद ये डेड प्लांट्स कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम के अंदर। उसके बाद है जी, व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड हाउ इज इट इज कैरिड आउट। रिफाइनिंग का मतलब है कि पेट्रोलियम की जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उनको अलग अलग करना। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। जिस कंपाउंड का, जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो सबसे पहले वेपराइज हो जाती है, उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होता है वो होती है। इस तरह तरतीब से अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से डिफरेंट फ्रैक्शंस इवेपोरेट होती हैं और डिफरेंट फ्रैक्शंस हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये होती है रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल। उसके बाद है जी, गिव अ यूज ऑफ कैरोसिन ऑयल। तो कैरोसिन ऑयल के बहुत सारे यूजेस हैं घर में। घरों में ये ईंधन के तौर पर, फ्यूल के तौर पर भी यूज होती है। इसके अलावा ये जेट फ्यूल के तौर पर भी यूज होती है। डिफरेंस बिटवीन डीजल एंड फ्यूल ऑयल, अगर हम इनके डिफरेंसेस देखें तो डीजल की कंपोजिशन जो है कि इसमें कार्बन के जो नंबर है वो नंबर 13 से नंबर 15 होते हैं और फ्यूल ऑयल में 15 से 18 तक कार्बन एटम्स होते हैं। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग रेंज की बात करें तो डीजल 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेपराइज होता है और फ्यूल 350 से 400 तक। अगर हम यूजेस की बात करें तो डीजल जो है वो बसों, ट्रकों वगैरह में इस्तेमाल होता है और फ्यूल ऑयल शिप्स वगैरह और इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ रेजिडुअल ऑयल। रेजिडुअल ऑयल लुब्रिकेंट्स देता है, पैराफिन, वैक्स, एस्फाल्ट, पेट्रोलियम कोक वगैरह इससे हासिल होती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रूड एंड रेजिडुअल ऑयल। तो अगर हम, क्रूड ऑयल वो होता है जो डेड और बरिड प्लांट्स की मिलियन ईयर्स तक जमीन में रहने और उसके ऊपर हाई टेम्परेचर से और प्रेशर के एक्शन से बनता है, वो होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को अगर हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें और उससे फ्रैक्शंस, बाकी 6 फ्रैक्शंस निकल जाएं, तो जो रिमेन्स और रेजिड्यूज बच जाते हैं, क्रूड ऑयल के जो रेजिड्यूज बच जाते हैं उनको हम कहते हैं रेजिडुअल ऑयल। लास्ट क्वेश्चन है जी, विच पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज यूज्ड इन द ड्राई क्लीनिंग। तो पेट्रोलियम ईथर इज यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पस। थैंक यू वेरी मच।